Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We have completed chapter 21, that is the name of chapter, that is life, human environment, second means of transport and communication. And after completing this chapter, today we are going to start chapter 22, land and the people. हम धरती और लोगों के बारे में पढ़ेंगे, केस स्टडी. ओके, in this chapter we will discuss about the types of environment, means in environment how we adopt ourselves. Suppose some places are very hot and some places are very cold, and how we adjust ourselves according to environment. Okay, and also we will study about the comparison between the Sahara desert, one is hot desert and another that is Ladakh cold desert. What is the differences between these two deserts? Okay, we will discuss, and also we will discuss other topic, that is what types of animals, what types of vegetations are found here, and also we will discuss life in tropical and subtropical regions, that is Amazon and Ganga Brahmaputra. And also we will discuss life of tropical region, that is Amazon, and after discussing this we will come towards life of the people of Ganga Brahmaputra basin. Okay, and after that we will discuss the life in the temperate regions, prairies and wild. Okay, and after this we will also discuss some important places here, and also we will discuss about vegetation, wildlife, and also we will discuss about the other types of means wildlife, and also birds, animals. Okay, so let's start our chapter 22, land and the people, case study. Okay, there exists a complex relationship between human and natural environment. It is said here that there is a very complex relation between whom? Between human and also नेचुरल इन्वायरमेंट. यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि बड़ा ही जटिल संबंध है किसके बीच में? हम ह्यूमन बींग्स और इन्वायरमेंट, प्रकृति के साथ. बोथ मैन एंड हिज इन्वायरमेंट रिएक्ट विद ईच अदर. हम दोनों एक तरफ रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से. People living in different parts of the world no doubt adopt themselves to their surroundings environment. And also you have seen that people living in the world, and they live in different types of climate, they have different types of environment, but they have to adopt the type of climate, the type of environment, the surrounding areas where they are living. Okay, but man is not a slave of his environment. But here a question comes that man is not a slave of environment. मीन्स हम इन्वायरमेंट के स्लेव यानी दास नहीं है कि हम उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे. बारिश होगी, ठंडक होगी तभी ठंडक हमको मिलेगी, गर्मी है तो गर्मी में झुलसते रहें, ऐसा कुछ नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया है. और उस इन्वायरमेंट को हमने कैसे चेंज किया है? हमने टेक्नोलॉजी की मदद से उसको चेंज कर दिया है. देखते हैं. बट मैन इज नॉट अ स्लेव टू हिज इन्वायरमेंट. ही हैज प्रूव्ड एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन शेपिंग द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिज ओन नीड्स. क्यों? एक फैक्टर, हम एक सच दिखा रहे हैं जिसमें कि हमने खुद अपने इन्वायरमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है. ठीक, चेंजिंग इन द कंडीशंस ऑफ लाइफ इन हिज फेवर. लाइफ को अपने फेवर में कर दिया. मान लीजिए ठंडक चाहिए तो आप ठंडी एसी में रहते हैं, गर्मी चाहिए तो भी एसी चलाते हैं. यानी हम अपने आप को
उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को, नेचर को ही हम अपने अकॉर्डिंग उसको अपना लिए हैं, ठीक है, ना कि नेचर हमें अपने अकॉर्डिंग अपनाया है। There is no denying the fact that human activities to a great extent are subject to the constraints put by the environment. And also you have seen that there is no doubt that the human activities, what they are doing to a great extent, or the subjects of what? Subject to that constraints put by the इन्वायरमेंट, जो कि कमियां हैं वो इन्वायरमेंट के द्वारा जो पुट की गई हैं, रखी गई हैं। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन इस कमियों को हमने टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से उसको पूरा कर दिया है। मैन हैज़ बीन एबल टू ओवरकम द लिमिटेशंस पुट बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट ने अब नेचुरल जो कंडीशंस रखे थे, जिन्होंने क्या रखा था, लिमिटेशंस रखा था, उस लिमिटेशंस को हमने क्रॉस कर दिया है। कैसे क्रॉस किया? ओनली बाय द डेवलपमेंट ऑफ अ टेक्नोलॉजी। टेक द केस ऑफ सऊदी अरबिया वेयर द एनवायरमेंटल लिमिटेशंस ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट, जहाँ पर ट्रॉपिकल डेजर्ट है, पूरा डेजर्ट है, लेकिन क्या हुआ है? रीजन हैव बीन टू अ ग्रेट एक्सटेंट ओवरकम बाय द एयर कंडीशनिंग, हमने उसको टोटली चेंज कर दिया है। एयर कंडीशनिंग ऑफ बिल्डिंग्स को एयर कंडीशनर बना दिया है। इम्पोर्ट्स ऑफ जो भी चीज़ें वहाँ पर नहीं अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें इम्पोर्ट्स के जरिए, फूड आइटम्स हुआ, जो भी आइटम हुआ, नेसेसरी थिंग्स जो है वो बाहर देशों से मंगाया जाता है। वो ऐसा महसूस नहीं होता है कि वो डेजर्ट में हैं, उनके यहाँ किसी चीज़ की कमी है, ठीक। The social and cultural background of the people also has a great bearing on human response. और यही नहीं, जो सोशल और जो कल्चरल, जो हमारी सांस्कृतिक बैकग्राउंड है, वो भी also has a great bearing on the natural, on human response. Although Northwest Europe and British Columbia in Canada आर इन द सेम नेचुरल रीजन, ये सभी उसी नेचुरल रीजन में आते हैं, लेकिन इवन देन द ह्यूमन रिस्पॉन्स इन बोथ दीज एरियाज इज नॉट द सेम, लेकिन ह्यूमन का जो, मनुष्य का जो रिस्पॉन्स है दोनों एरिया में बराबर नहीं है। कैसा है? इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन इंडस्ट्री, जब हम नॉर्थ वेस्ट यूरोप में देखेंगे तो लोग अपने आप को किस में इंगेज किए हुए हैं? इंडस्ट्रीज में इंगेज किए हुए हैं। एंड वाइल जब हम ब्रिटिश कोलंबिया यानी कनाडा की बात करते हैं तब लोग किस में बिजी हैं? फिशिंग एंड लंबरिंग, फिशिंग मछली पकड़ने का, मछली पालन का, और लंबरिंग लकड़ी काटने के काम में वो लोग व्यस्त हैं। लंबरिंग आर द मेन एक्टिविटीज ऑफ द पीपल, ये दोनों चीजें उनकी में मुख्य कार्य हैं, ठीक। लाइफ इन डेजर्ट रीजन सहारा एंड लद्दाख, दिस टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो, ओके। सो टुडे ओनली दिस मच, थैंक यू।